Let's talk about the next point now. Conducting effective customer interviews. Why it is important? कुछ आया दिमाग में? So see, the communication is the key, and especially for any entrepreneur. You know, you have to be very effective with your choice of words, with your interaction, with your communication, so that you can get the accurate answers. As simple as that. If you have the smart question, you will have the smart answer or the accurate answer. If you will keep on asking leading questions or close-ended questions, then you will get answers either those are not useful to you or very limited answers, right? So the idea is, I'm sorry. So the idea is we should have an effective customer interview plate with us, and we should press that plate into certain areas so that we can have the answers which is related to our product and services we are going to sell or we are already selling, right? And why to do this? Because until unless we will not reach out to the people to whom we are serving, and we will not ask the accurate questions, we will not communicate with them effectively, we will not able to understand that what they are exactly desire for. Even when you make a call to the call center or customer care for any of help, then at the end of the call, they always tell you that after this call you will receive a message for the survey, and when you fill the survey, you understand that what kind of question they are asking. So pay attention next time, right? It will help you to understand what is the purpose of this, to validate assumptions. In the last slide or in the first point, what we have discussed, a user persona is a fictional representation of your ideal customer based on real data and educated assumptions. Here, we validate those assumptions simple to uncover the real pain points. For an entrepreneur, it is very important. What? To uncover the real pain points. एक एंटरप्रेन्योर जब वो बिजनेस करता है और वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है तो ही उसकी एक्सेप्टेंस है। ये हम पहले मॉड्यूल से डिस्कस कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखना ये जरूरी है, right? We need to understand that how our users are currently solving their problem, or they are not solving their problem, they accepted their fate कि ये तो अब होकर रहेगा, right? ये जब तक आप समझोगे नहीं, you will not be able to deliver. How to do it? The best practice is interview 5 to 10 customers per second. आपने एक प्रोडक्ट चूज किया, मैं एक आपको रेफरेंस इंस्टेंस देता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरा मन है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया कि मेरे को ये स्मार्ट रिंग बनानी है। आती है स्मार्ट रिंग मार्केट में? ये नहीं है। ये नहीं है स्मार्ट रिंग, पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मेरी स्मार्ट रिंग जो है आपका हार्ट रेट चेक करेगी टाइम टू टाइम, आपका बीपी चेक करेगी, शुगर चेक करेगी, इस तरीके की कुछ डेटा मेरे को देता रहेगा सो आई कैन ट्रैक। ठीक है, सिंपल। अब मैं एक आईटी कंपनी में हूँ और मेरे आसपास सारे मेरे जैसे आईटी प्रोफेशनल है, जिम वगैरह जाने का समय नहीं मिलता, दे आर नॉट गेट एनफ टाइम टू गेट इनटू द फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और एनीथिंग। So they are little concerned about their health and their weight gain and everything. Are they my ideal customer? Answer is yes. But now imagine that I work in a school, right? And I'm a teacher, and I'm teaching political science, right? And all my circle is based upon the people who are highly intellectual and they are into the education line, and they more focused on what is happening in the society and everything, and they are less concerned about their physical activities. And the reason is why? Because they have a settled lifestyle as compared to IT professionals. Why? Because they have a timing that they'll come at this time, they'll go at this time, and then they'll have food, they'll sleep, they go for a walk. So I'm not talking about exceptions, and I'm just trying to differentiate between the industry. IT industry is very demanding, right? There is very less chances that as a teacher you have to work in the night.
if until unless there is a night schools, but that too at a very limited basis. For an IT professional, there is no time zone. Sometimes you have to work Australian shift, Indian shift, American shift. So that's the massive difference. So my ideal customer would be IT professionals, not the my circle of school teachers, right? So this is just to give you the reference, right? It doesn't mean that those people are not careful about their health. The only point is that they still, have a structured timings. But here, as an IT professional, there is no fixed timings. The demand is high. You have to be on your toes all the time, even if you are on leaves. You have to open your laptop, so such things. So when I reach out to my, accurate customers or the users, then what should I ask? I should ask them effective questions, right? Open-ended questions. I would not uh, directly go and ask कि ब्रो मैंने ना ये रिंग बनाई है तो यूज करेगा. As a friend, he will say, okay, I'll do. But if I'll go to the company next door to me, they are also IT professional. If I'll go to मैंने रिंग बनाई है यूज करेंगे तो why would I use? हो सकता है आप मेरे डेटा को ट्रैक कर लो, आप उसका मिस यूज करो, या हो सकता है आपकी रिंग बैटरी है मेरे हाथ में ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी. यू नो सो डू नॉट आस्क सच क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चन. टेल मी अबाउट द लास्ट टाइम यू फेस प्रॉब्लम अबाउट योर हेल्थ. वो बताएगा कि यार हाँ थोड़ी समस्या तो है. ओके, कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो? मैं कोशिश करता हूँ, वो आंसर करेगा, मैं कोशिश करता हूँ अपनी डाइट ठीक करूँ, मैं जिम जाऊँ, वॉक करूँ, है ना, ऐसे कुछ. अ, फिर मैं पूछूँ कुछ उससे असर हो रहा है? नहीं यार, 19-20 पर नहीं, ज्यादा नहीं है. क्या हुआ यार, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो कहेगा कि यार परेशानी तो है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, और वो तो अच्छी चीज नहीं है, तो परेशानी तो हो सकती है. बिंगो, आप अपना प्रोडक्ट निकालोगे. क्या ब्रो, इफ यू डोंट माइंड, दिस इज वन product I have, you know, which I guess can help you to to enable others. And then the person would ask, okay, how? Okay, you'll just keep this ring, keep on charge that ring. The battery backup is 3 4 days, and connect it with your phone and put it on. So it will track your blood pressure, it will track your, and it will also track your vitamins. Use that one. And the person says, oh, okay, thanks. So effective questions, effective customer interviews. If you directly ask, would you use this? The person would say no. Right? Your friend may take it, but the person who's working next door to you, they won't. But if you ask such effective questions to anyone, there are chances that they will accept it. Right? And then record interviews, obviously, with permission. I have mentioned this because it is very, very important. Right? Take consent on everything. It is very, very important. So record those conversations, right? Maybe it's in a written form or visual form or whatever, and then do the complete analysis, right? I'll give you an, and there is a tips to it. Listen 80%, talk 20%. This is for the uh, conversational interviews. But if you have to do it on papers, then still the way we have discussed, ask open-ended questions. When you ask open-ended questions, right, then you talk 20% and you will get the answers in 80%. Right? Follow the emotion, dig deeper where they seem frustrated or excited. Right? When we ask questions that tell me about your last time you faced problem, they were you wanted to dig deeper, and then currently how to handle it. Then they got a little excited because everybody wants to tell their success story. Yeah, I started going to gym and it's working for me, maybe 10%, 20%, right? And then what happens if it don't so? Then the person got little anxiety and oh my god, it won't happen. So that's how. And look for the patterns in language and behavior, obviously. So these are few things when I say look into the patterns in language and behavior is, if the person is seems excited,
if the person is giving you the answers accurately or trying to be engaged in the conversation or engaged in the survey, it means that the person is still thinking about your product or thinking for the solution. This is the same thing we have discussed earlier, that if you wanted to create a uh, fashion brand like lipstick, right? And out of 100, if 10 people giving you feedback, there is something wrong. But if 85% people giving you the feedback, it means there is something in their behavior which is positive for you as an entrepreneur. Get it? Let's move to the next point. The next point is mapping your journeys and pain points. So now you know the creation of persona, right? We have discussed it. Then you know that how to conduct effective customer interviews, how to validate the assumptions, and how to get the real pain points. Now, visualizing how users experience a problem, your user experience a problem helps identify opportunities to add value. Same thing what we have discussed, now map it. And we understood the assignment in our last interview. If you'll see, tell me about your last time you faced problem health wise. They said that मेरे को कुछ परेशानी हो रही है मेरी बॉडी में, आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस, देन हाउ डू यू करंटली हैंडल इट, ही सेड जिम। देन उसके बाद इज इट हेल्पफुल, दे सेड नो, मेरी डायबिटीज बढ़ती जा रही है, एंड द फोर्थ इज व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट सॉल्व, दैट्स डेंजरस, राइट? नाउ दैट, ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम है। अब इसको मैंने आइडेंटिफाई किया, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, तुरंत से रिंग निकाल के दे दी और अपनी वैल्यू ऐड कर दिया उसमें, right? So you have to understand step by step, visualizing how user experience the problem helps identify opportunities to add value. Opportunities के डोर ओपन हो जाते हैं जैसे ही आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, आपके पास डेटा आता है। Stages. Let's talk about the key components. Number one is stages. Break down the steps users take: awareness, research, decision, use that. You know, एक जो यूजर होता है ना, कोई भी, आप भी मार्केट में हो ना, आपको सबसे पहले चीज के बारे में पता चलता है, आप उसके बारे में अवेयर हो, फिर आप उसके बारे में रिसर्च करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं बहुत ऐसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो हम लोगों की फील्ड से डिफरेंट हो, नॉर्मल बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर आप अ, आपको मोबाइल फोन लेना है आज की डेट में, और आपके पास 50,000 की पॉकेट है, 50,000 की पॉकेट में आपके पास 7-8 ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, पहले आप अवेयर होगे कि एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है। सब एक प्लेटफॉर्म के फोन आ रहे हैं, तभी आपको एक अवेयरनेस आती है, आपको भी कहीं से पता चलता है कि यार एक ना फोन आया है, उसमें ना एक ये एक्स वाई जी टूल एडिशनल है। हम एआई का एग्जांपल ले लेते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि हम ऐसे एरा में बैठे हैं, अभी एआई आया नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तब हमको पता चलता है कि एक फोन ऐसा है जिसमें ना वो सब कुछ है जो बाकी के फोन में, पर उसमें एक चीज एडिशनल है, दैट इज एआई। तो आपको अवेयरनेस तो हो गई, अब आप उसके बारे में रिसर्च कर, कि अच्छा चेक करते हैं कि यार एक्चुअली में इससे कोई नुकसान तो नहीं है, फोन को स्लो तो नहीं हो रहा है, बैटरी तो नहीं ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, या फिर इफेक्टिव भी है कि नहीं, है ना? फिर आप चार चीजों के बारे में रिसर्च करते हो, फिर आप अपना डिसीजन लेते हो कि ठीक है यार, फोन ठीक है, लेट्स बाय दिस, मेक सेंस? एंड देन यू यूज इट, व्हेन यू यूज इट, देन एक्चुअली यू नो, यू गेट टू नो कि okay, ये एक्चुअल में कैसा है, क्योंकि आप जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी का फोन ले सकते हो, वो कोई आपको आधे घंटे के लिए दे देगा, फोन तो वैसे ही कोई नहीं देता आज लेना भी नहीं चाहिए। एंड है ना, आप किसी शोरूम में जाओगे तो आप 5-10 मिनट चला के देख सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। बट व्हेन यू एक्चुअली यूज इट, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, देन यू गेट द रियल, सो व्हाट एक्शन नीड्स टू बी टेकन बेस्ड ऑन दीज स्टेजेस, व्हाट इज द यूजर डूइंग एट ईच स्टेज, वो अवेयरनेस के लिए कहाँ जा रहा है, हियर कम्स द मार्केटिंग थिंग, वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अवेयरनेस के लिए जा कहाँ रहा है। हम, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप किसी, आपको कोई ऐड आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो वो पूछते हैं आपसे, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट आवर प्रोडक्ट, आपने कभी ध्यान दिया है? ध्यान दे रहे हो आगे,
फिर आपको ऑप्शन दिए होते हैं लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और वेब और लिखा होता है अदर्स कि आप किसी ने बताया तो आपको बताना उससे क्या होता है पता चलता है एक्शंस अवेयरनेस कहाँ से आ रही है। फिर आपको अगर आपके 100 यूजर है 100 यूजर में से 80 लोगों ने बोला हमको इंस्टाग्राम से पता चला तो आप क्या करोगे आपकी जो मार्केटिंग है वो इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा मोड़ दोगे यार यहाँ ज्यादा पैसा लगाते हैं रेदर क्योंकि बाकी एरियो से तो ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं आ रहा इंस्टाग्राम से आ रहा है दिस इज वन एग्जाम्पल राइट देन सेकंड स्टेप रिसर्च आप रिसर्च के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं आप फिर अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से प्लेस करने की कोशिश करोगे आप डिसीजन कैसे ले रहे हो कितनी जल्दी डिसीजन ले रहे हो जब आप पहले दिन स्टोर गए थे उसके बाद फोन खरीदने तक आपने कितने विजिट किए उसी दिन ले लिया देन यू आर अ क्विक बायर आपने समय लिया इट मींस दैट यू हैव अ डायलेमा तो वो एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है अपने पूरी प्रोडक्ट को प्लेस करने में अगर आप क्विक बायर हो तो वो आपके सामने तुरंत दे देगा उसको फॉलोअप की जरूरत नहीं है लेकिन अगर उसको लगता है कि आप एक ऐसे बायर हो जो थोड़ी रिसर्च में समय लगाता है तो वो आपको बार बार अपना प्रोडक्ट दिखाएगा ऐसा होता है फॉलोअप कॉल्स आती है ना सर वो आप देख के गए थे आप आए नहीं लेने दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट एंड देन जब वो यूज कर रहा है तो यूज करते हुए क्या आप एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट हम फीडबैक लेते हैं और आके करेक्शन करते चले जाते हैं इमोशंस हाउ डू दे फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज दुनिया में एंड ऑफ द डे जुड़ी हुई है इमोशंस के साथ आप पैसा स्पेंड करते हो यू हैव मल्टीपल यू नो मल्टीपल डिवाइसेस एट योर होम आपके पास कपड़े हैं आपके पास गाड़ियां हैं लेकिन एंड में तो वो इमोशन ही है ना मैंने अपने फादर को एक फोन लेके दिया मैंने अपनी मदर को गाड़ी लेके दी या मैंने अपने लिए ज्वेलरी ली तो वो क्या है वो इमोशंस है सो जब तक वो मजा नहीं आएगा कंज्यूमर को तो फिर वो इमोशनली कलेक्ट नहीं कर पाएगा उस चीज से जब तक इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका काम मुश्किल हो जाएगा पेन पॉइंट्स वेयर आर द फ्रिक्शन पॉइंट्स आर वही हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम ये इन कंपोनेंट्स को तरीके से इसके ऊपर जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट्स बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपका पेन पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया आप तकलीफ में और अगर मैंने आपको हेल्प कर दिया तो फिर आपका और मेरा इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा बनेगा एंड एज एन एंटरप्रेन्योर दिस इज द की सॉरी एंड देन अपॉर्चुनिटीज वेयर कुड यू इंटरवीन अगेन ये आता है जब आप यूज वाले फेज में होते हो ना तो वैसे तो ये सब जगह ही अपॉर्चुनिटी सब जगह है अवेयरनेस में भी आपकी अपॉर्चुनिटी आप कैसे अवेयरनेस और क्रिएट कर सकते हो रिसर्च में भी आप रिसर्च में हेल्प कर सकते हो देर आर मेनी साइंस दीज डेज आपने मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी थोड़े दिन पहले मैं ब्लिंकिट में कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट जो घर पे ग्रोसरी वगैरह डिलीवर कर तो ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी मैं फ्रेश वेजिटेबल्स में गया तो मैंने वहां पे सिलेक्ट किया जुकीनी जब मैं जुकीनी सिलेक्ट कर रहा था ना तो उसमें ना नीचे एक टैब आ रहा था उसमें लिखा था 20 जुकीनी रेसिपीज मैंने उस पर क्लिक किया तो एक्चुअली में वो मेरे को ले गया वहां पे कि जहाँ पे ना 20 टाइप की रेसिपीज है जुकीनी की मैंने तो बड़ा क्रेजी चीज है यार देख रहे हो कि आपने कोई वेजिटेबल खरीदा वो आपको उसकी रेसिपी दे रहा है तो अब ये क्या है ये उन्होंने अब एक अपॉर्चुनिटी देखी अब इससे मैं एक्साइट हुआ ना शायद मेरे को दूसरी ऐप में वो नहीं मिल रहा था लेकिन ब्लिंकिट ने किया मैं एक्साइट हुआ अब ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट कर दी ये उन्होंने ना डिसीजन के टाइम पे कर दी ये अवेयरनेस नहीं है क्योंकि पहले से पता है ब्लिंकिट पे जाना है रिसर्च नहीं है क्योंकि ब्लिंकिट यूज कर रहा है डिसीजन पे है डिसीजन बना लिया ब्लिंकिट यूज करना है और डिसीजन बना लिया कि मेरे को जुकिनी लेनी है यहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी अगर वो जुकिनी ले रहा है ना तो इस कस्टमर को अपने पास ही रोक लो क्योंकि जुकनी तो ब्लिंकिट नहीं बना रहा ना वो तो कहीं थर्ड पार्टी से आ रही है हो सकता है मे बी देर इज अ स्लाइट चांस कि वो जुकनी खराब निकले तो कस्टमर इरिटेट तो होगा ब्लिंकिट शायद उसको पैसे भी रिफंड कर देगा लेकिन ये जो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट करी ना डिसीजन के टाइम पे वो रेसिपी वाली उससे कस्टमर को एक इतना पता है कि यार एटलीस्ट ये जो कंपनी है ना जहां से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ये काम तो मेरे लिए कर रही है मेरे पे मेहनत तो कर रही है तो वो एक इमोशनल कनेक्ट वहां पे बन जाता है आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्मॉल एग्जांपल ऑफ इट right and you can see that once you will understand all the stages awareness research decision and use opportunities are enough in the market and एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए एक अपॉर्चुनिटी देन टूल्स हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को ट्रैक करने के लिए बनाने के लिए लाइक मीरो यूसी चैट फिग्मा ये सब टूल्स हैं ये जो सैंपल डिजाइनिंग करते हैं आप इसमें टेबलिंग कर सकते हैं डायग्राम बना सकते हैं
आप अलग-अलग पार्ट्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी टेबल में आप अवेयरनेस का टेबल अलग, रिसर्च का अलग, डिसीजन का अलग, यूज़ का अलग, ठीक है? फिर उसको आप डायग्राम वे में भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि आपकी टीम के लिए अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाए। फिर आप उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, सारे नंबर्स का, बिकॉज़ किसी भी डेटा को स्टोर करना और उसको इफेक्टिवली उस डेटा का यूटिलाइज़ेशन ही मेन फैक्टर है। उसको आप एक बार इन टूल्स पे जाके देखिए, मीरो पे, यूसेफ चार्ट पे, फिग्मा पे, और भी टूल्स हैं इनसे जुड़े हुए। मैंने आपको सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों करते हैं, इनका यूज़ क्या है, और इस सेशन के एंड में भी हम जाएँगे, हम कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।